Good morning, students. Last time we had finished this second unit of your textbook, right? And now grammar we had finished up to lesson 11. So now we shall start your textbook. Up to lesson 11 we had finished grammar, see up to here. And review 1 I have given you in homework, right? So now let us now we stop here. Lesson 12 in verbs in your grammar textbook we will start afterwards. Let us start with your Gujarat board textbook with unit 3, right? Let us study unit 3. Unit 3 is water everywhere. Activity 1. This unit is about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture. Write the names of as many objects as you can, right? Sun is there, clouds are there, you can see rain falling, then this is water evaporating. It is kind of water cycle being shown, right? What is happening on the to the water in the picture? वाटर यहाँ से बारिश होके गिर रहा है, पानी है, फिर इवेपोरेट हो रहा है सन की वजह से, हीट की वजह से, बिकमिंग क्लाउड्स, गेटिंग condensed in the sky and again falling into rain, right? And then going to the water reservoirs like sea, rivers and all that, and again it is coming to a major part, that is sea, which is from where it is getting evaporated. So it is a water cycle. Now let us read. Water boy, part 1. Vijay liked to play with water. He liked to play with water in many ways. He liked to fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. He liked to make big mud puddles in the garden and pretend it was a lake. राइट में बिग मड पडल्स बनाता था, मतलब गड्ढे बनाता था और उसके अंदर पानी जमा करता था और उसके अंदर खेलता था. ही लाइक टू ओपन द होज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉकड बाय. फ्रेंड्स के ऊपर पानी उड़ाता था उसमें से. हिज मदर टोल्ड हिम मेनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन. उसकी मम्मा उसको बोलती थी कि पानी वेस्ट मत करो, पर नहीं सुनता था. वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins, right? उसको उसकी मम्मा कहीं पे लेके जा रही है, अंकल के घर पे लेके जा रही है, तो he was very happy. With Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. Suddenly in the middle of the night Vijay woke up. There was a lot of noise outside his room. बहुत सारी आवाज़ शोरगुल हो रहा था और नींद में से एकदम से विजय उठ गया. विजय could not understand why so many people were awake at night. Awake को underline करो, at night. बट ही वॉज वेरी टायर्ड को अंडरलाइन करो. टायर्ड मतलब थक गया था. उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग बाहर हैं और बातें बहुत जोर जोर से कर रहे हैं. वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप, राइट? यहाँ पे पडल्स को अंडरलाइन करो. पडल्स इज अ न्यू वर्ड. देन बिग पडल्स इन द गार्डन. प्रिटेंड को अंडरलाइन करो. प्रिटेंड मतलब नाटक करना. देन स्प्लैश को अंडरलाइन करो, मतलब उड़ाना, राइट? वेस्ट वाटर नॉट लिसन टू डिसाइडेड टू. सडनली को अंडरलाइन करो. इट इज़ ऑल्सो न्यू वर्ड. सडनली मतलब एकदम से. अराइव्ड को अंडरलाइन करो, राइट? लेट एट नाइट. एंड कजिन्स को करो यहाँ पे अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स सो दैट यू हैव टू राइट ऑल दीज एज हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक. एंड लेट अस मूव अहेड. क्या देखा उसने? काफ़ी सारे लोग जमा हुए हैं, पर वो इतना देख करके थका हुआ था तो फिर से सो गया. नाउ एक्टिविटी 3. व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी सो फार. कौन से कैरेक्टर्स मेंशन करे गए? तो विजय, हिज मॉम, राइट, एंड अंकल को मेंशन किया है. बाकी सारे काफ़ी सारे लोग हैं पर वो कोई उसमें पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, राइट? While Vijay was sleeping, something happened to wake up and other people in the house. What do you imagine might have happened? ये imagination वाले आंसर्स छोड़ दो, right? Ask your classmates what they think might have happened. ये भी छोड़ दो. Now move on to activity 4 again further. Water body part 2. The next morning Vijay got up and went to the bathroom. When he opened the tap there was no water. He looked around and found water stored in many buckets. नल खोला उसने सुबह उठ के तो नल में पानी नहीं आ रहा था. बाथरूम को अंडरलाइन करो.
Open the tap, there was no water. He looked around and found that water stored in buckets. को underline करो. He was surprised and asked his cousin about it. कि क्या हुआ, पानी क्यों नहीं है करके, और पानी भर के क्यों रखा है बकेट में, नल में पानी नहीं है. His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. It had not rained for a couple of years and all the lakes had dried up. Right? उसके वहाँ पे सूखा पड़ गया था, 2 साल से कोई बारिश नहीं हुई थी, और इसीलिए क्या हुआ था, उनको पानी ऐसे वेल में से निकालना पड़ रहा था, भर भर के वो लोग रखते थे. they had to depend on some water that came from one tap, and they had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day and any time. Right? मिस नहीं कर सकते थे, कभी भी आता था दिन में एक बार, और वो पानी वो पूरे दिन के लिए यूज़ करने के लिए भर के रखते थे. राइट. लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम. लकीली को अंडरलाइन करो, एकदम से पानी आया था इसलिए सब भरने खड़े थे, इसलिए उसने शोरगुल सुना. बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन. टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज़ द वाटर दे हैड कलेक्टेड द नाइट. राइट. जो उस दिन पानी आया था उसमें से जितना कलेक्ट करके रख सकते हैं वो रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अब फिर से पानी कब आएगा पता नहीं है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है. 2 दिन बाद भी आ सकता है, 3 दिन बाद भी आ सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, ऐसा सब था प्रॉब्लम. सो इसीलिए वो लोग पानी ढेर सारा भर के रखते थे. राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल, अंडरलाइन केयरफुल, एंड नॉट टू वेस्ट वाटर. क्या वेस्ट पानी नहीं करना है, वेस्ट को भी अंडरलाइन करो, ऐसा बोला राजेश ने अपने कजिन को, विजय को. इफ़ द फैमिली रैन आउट ऑफ वाटर दे वुड हैव टू buy water from someone else and it was very expensive. पानी खरीदना पड़ेगा किसी और से अगर ये पानी ख़त्म हो गया तो, इसलिए पानी वेस्ट करना नहीं है, ऐसा बोल रहा है उसका जो कज़िन है वो, नहीं तो बाहर से ख़रीदना पड़ेगा. खरीदना मतलब इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज़ वाटर वाइजली. उसने विजय को समझाया कि कैसे पानी वाइजली जुडिशली यूज़ करना चाहिए, वेस्ट होने से बचाना चाहिए. ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ. अंडरलाइन ब्रशिंग. ही टोल्ड विजय to use just a glass of water while brushing his teeth. He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in the bucket. Right? थोड़े से अमाउंट के पानी में ही नहाने को बोला उसको, ताकि पानी को सेव किया जा सके. ही टोल्ड विजय टू सेव द वाटर अंटिल फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स सो इट कुड बी यूज्ड अगेन लेटर. राइट. और उसमें से भी कुछ अगर बच जाता है बाल्टी में तो उसके कपड़े धोने के लिए वो पानी बचा के रखने के लिए उसने बोला. राइट. वॉशिंग द क्लोथ्स. विजय वॉज सरप्राइज्ड. ही हैड नेवर इमेजिन्ड मतलब उसने कभी सोचा नहीं था दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्कैर्स मतलब इतना कम था. राइट. नाउ ये सौराष्ट्र जो है, राजकोट सिटी जो है, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन रहता है, तो वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत सारा पानी भर के रखते थे पहले. अभी 2-3 साल से बारिश अच्छी हो रही, इस साल तो बहुत ज़्यादा हुआ, फ्लड आ गया वहाँ पे. राइट. बिकॉज ऑफ अनइवन रेनफॉल्स दिस ईयर देयर वाज अ फ्लड इन राजकोट, बट अर्लियर वहाँ पे सूखा पड़ता था, तो उन लोग को पानी ऐसा भर के रखना पड़ता था. राइट. एंड इन डेजर्ट्स, जहाँ पे डेजर्ट है राजस्थान में, जहाँ पे डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे पानी स्कैर्स होता है, तो उनको इजीली पानी मिलता नहीं है, इसीलिए उन लोग को भी ऐसे पानी बचा के रखना पड़ता है. राइट. हिज कजिन लाफ्ड एट विजय एंड सेड, विजय you use too much water every day. Soon there will be less rain and you may have the same problems that we are facing now. You should learn to save water. Right. उसका कज़िन हंसने लगा उसकी बात सुन के, और उसने उसको समझाया कि तुम अगर ऐसे पानी वेस्ट करते रहोगे तो कल को अगर सूखा पड़ेगा तुम्हारे वहाँ पे तो तुमको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे. राइट. सो ट्राई टू कंजर्व वाटर, नेवर वेस्ट इट. ब्रश करते टाइम आपका बेसिन का नल चालू रखा है वो गलत है, पानी वेस्ट होता है. डू नॉट वेस्ट दैट वाटर. सो क्लोज द टैप्स. राइट. टैप्स को ठीक से क्लोज करो. अगर लीकिंग टैप्स है तो उसको रिपेयर कराओ, ताकि वो एक ड्रॉप भी पानी जो गिरता है वो वेस्ट ना हो. राइट. और अननेसेसरी कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, या घर साफ़ करने के लिए पानी से धोने की ज़रूरत नहीं होती है. स्वीप इट. राइट. अननेसेसरी पानी जहाँ पे वेस्ट होता है वो बचाने की कोशिश करो.
Water is so important to people that it has inspired art, songs, and poems. Here is a poem about water by Mary Oliver. Mary Oliver is the writer of the poem. She is the poet. Mary Oliver is a well known American poet who loves water. She lives near the ocean. Ocean matlab samandar. Ocean, and writes many simple but beautiful poems. Beautiful ka underline karo. But about the nature and around her. शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स. शोर बर्ड्स मतलब जो किनारे पे रहने वाले बर्ड्स होते हैं ना समंदर किनारे, वो शोर बर्ड्स, वाटर स्नेक्स, हम्प बैक वेल्स. हम्प बैक इज अ टाइप ऑफ वेल, अ स्पीशीज ऑफ वेल, राइट. द पॉन्ड्स, द हार्बर. हार्बर मतलब जहाँ पे पोर्ट होता है ना, जहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स जाती है ओशन में, दैट इज कॉल्ड हार्बर. हार्बर वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स, राइट. सो शी इज राइटिंग अ पोएम. विजय इज कैरिंग वाटर. Imagine what Vijay will do with the water. Do you imagine him wasting water or using it wisely? Write one sentence describing that what Vijay will do with the water. ये अपने आप लिखो, write it in homework. What you think that Vijay will do, because Vijay is not used to saving water. He is wasting water in making puddles and playing water with into it, right? तो ऐसा सब आदत है उसको. तो उस हिसाब से अपना अपना आंसर लिखो. Read your sentence to the class. Listen to classmates and read their sentences. Keep count of how many sentences describe. ये सब जाने दो. This exercise is not needed to do. Look at your count. Did your class imagine wise uses of water? In just in short, you need to save water. That is very important. Put your ideas and answers to these questions in the paragraph below to help you describe the results of this activity for your class. Read your paragraph aloud to the classmate. ये भी जाने दो. In my class, students more described many ways. आप लिख सकते हो many ways of using water. Then ठीक है, leave it, don't do it. Now this is activity 6. अब एट बैक वाटर पॉन्ड, मैरी ओलिवर ने जो पोएम लिखा है उसको पढ़ते हैं हम लोग. एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉस्ड वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन. टॉस्ड वाटर्स मतलब जो पानी जो बारिश का गिरता है वो कहीं कहीं गड्ढे हुए होते हैं रोड में, उधर जमा हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड टॉस्ड वाटर. टॉस्ड को अंडरलाइन करो. ये भी टॉस मतलब जब पानी नीचे गिरता है, बूंद जब नीचे गिरती तो उसका अपोजिट इफेक्ट भी आता है, वो काफ़ी सारा ऊपर भी ऐसे उड़ता है, वो स्प्लैश होता है, राइट. दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हियर. टॉस्ड वाटर्स, राइट, हैव सेटल्ड. सेटल्ड मतलब वो बैठ गए हैं अभी. आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, रेन ख़त्म हो गया है. और फिर आई डिप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम. कप्ड हैंड्स मतलब ऐसे करके पानी में डालते हैं ना हम लोग हाथ, और ऐसे में इधर जो पानी फिर हाथ में जमा हो जाता है उसमें से हम पानी पीते हैं. दैट इज़ कप्ड हैंड्स. आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, इट टेस्ट लाइक स्टोन, राइट. काफ़ी सारा मैंने पिया. कैसा टेस्ट आता है उसका? स्टोन, लीव्स, फायर, सब उसके अंदर स्मेल आती रहती है पानी में. इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी वेकिंग द बोन्स. आई हियर, एकदम ठंडा पानी होता है बारिश का. जब आप नहाते हो तो आपको पता चलता है कि कितना ठंडा है, राइट. वेकिंग माई बोन्स मतलब एकदम से आपके बोन्स पे ये आ जाती है, शिवर आ जाती है. आई हियर देम डीप इन साइड मी विस्परिंग. अब मेरे अंदर वो उसकी आवाज़ आती है. विस्परिंग मतलब बारिश की आवाज़ आ रही. विस्परिंग, ओ वॉट इज़ दैट ब्यूटिफुल थिंग दैट जस्ट हैपन. इट्स सो ब्यूटिफुल व्हेन यू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ रेन व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. काफ़ी सारा गर्मी के सीज़न के बाद जब बारिश होती है तो आप बहुत हैप्पी फील करते हो. दैट इज़ अ वेरी हैप्पी फीलिंग. लुक केयरफुली एट ऑलिवर्स पोएम. एक्टिविटी 7 कर रहे हैं हम लोग. एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. द टाइटल एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टेल्स अस दैट द पोएट इज एट अ सर्टन प्लेस. यूज एट टू राइट सेंटेंसेस टेलिंग वेयर यू आर नाउ. So ये at is a very important preposition. What is it? It is called preposition. जब हम लोग preposition grammar में करेंगे तो उसमें भी मैं आपको समझाऊंगी. This is preposition means positional words, जो आपको position या relation दिखाते हैं noun का. That is called a preposition. तो अभी आपको at use करके आपके sentence में बनाना. I am at Baroda, right? I am at Vadodara. I am at जीवन साधना school. I am at school. ऐसा भी बोल सकते हो आप. ज़रूरी नहीं पूरा mention करना name.
The poem says, I dip my cupped hands, I drink a long time. It tastes like stone leaves fire. What tastes like stone leaves fire? Water. जो water वो पी रहा है, जो poet उसमें cup hands करके वो लगता है, right? ऐसा ऐसा उसका smell आ रहा है. The poem says, it falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering. What wakes up in the poem, and what do they say then they wake up, right? Full stops, periods, and question marks tell us when we are at the end of the sentence. How many sentences does at Blackwater Pond have? कितने sentences है जहाँ पे full stop है वो sentence होता है, right? The Blackwater Pond, the tossed waters have settles at the Blackwater Pond. ये settle का actually full stop होना है. After a night of rain, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए. आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन के बाद फुल स्टॉप है. तो ये एक पूरा सेंटेंस हुआ. जहाँ पे आप फुल स्टॉप देखोगे वहाँ पे सेंटेंस एंड होता है, राइट? दिस इज ऑल कॉल्ड पंक्चुएशन. जहाँ पे कॉमा होता है वहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर रुकते हो. सो दीज ऑल मार्क्स, कॉमा, then full stop, then question mark, exclamation mark, these are all punctuation marks, right? तो आप जब टेक्स्ट लिखते हो, जब आप पढ़ते हो या बोलते हो, तो आप वहाँ पे पॉज लेते हो या कोई फीलिंग दिखाते हो. जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है तो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप राइटिंग में यूज़ करते हो, राइट? तो वो टेक्स्ट जो आप बोलते हो उसको सामने वाला फील करता है कि आपका क्या फीलिंग है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस. बट अगर आप उस चीज़ को लिखते हो तो जो पढ़ने वाला है वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा कि क्या फीलिंग है. तो उसके लिए हम लोग ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं. सेंटेंस को एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप करते हैं, छोटा सा पॉज लेने के लिए हम कॉमा करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन के लिए हम लोग इंटरोगेटिव मार्क बनाते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, राइट? सो दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स. स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेंटेंस हम लोग कैपिटल लेटर से बनाते हैं, दैट इज ऑल सेट, राइट? Full stops, periods, the question marks tell us when we are at the end of a sentence. How many sentences does at Blackwater Pond have? वो ढूंढो. Blackwater Pond, ये एक sentence हुआ, number 1, then number 2, then number 3, then number 4, then number 5. Total 5 sentences it has got, out of which one is a question, right? 5 में से एक question है. Commas tell us when a sentence has more than one part. Which sentences in the poem have more than one part? तो comma कहाँ पे दिया है वो ढूंढो. तो ये रहा comma इधर है, right? So 1, then 2, and then 3. So 3 sentences have commas. So they are all having more than one part. Now activity 8, Oliver could have ended each line at the end of the sentence like this: at the Blackwater Pond, the tossed waters have settled after a night of rain. I dip my cupped hands, I drink a long time. It tastes like stone leaves fire, right? सबका एक एक लेटर कैपिटल है. It falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? Notice how the sentences differ. Some sentences are long, some are short. Some sentences have more than one part, and one sentence is a question. The different kinds of sentences in Oliver's poem make it more interesting. Work with your group to write a poem about a place that uses sentences like Oliver's. Forget it, you are not going to write any poem. Now let us move on to activity 9. Let us read what is it about. And yes, we have underlined the words here. वो words आपको लिखने हैं hard words में, right? Now activity 9, water everywhere. How much water is there on earth? There is a lot, something like 1, 20, 2, 6 and so many zeros, right? Liters, millions of liters can be found on our planet. This water is in a constant cycle. It evaporates, underline करो evaporates को, from the ocean, travels through the air, rains down on the land, and then flows back to the ocean. The oceans are huge. Most of the earth is covered in oceans.
90% of the water on the planet मतलब earth is in the oceans and therefore is in अनड्रिंकेबल मतलब जो पीने लायक नहीं है, सॉल्टी वाटर होता है ओशन का बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश को अंडरलाइन करो, सिर्फ 2%. अबाउट बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन द पोलर आइस कैप्स. पोलर आइस कैप्स में 1.6% इट इज़ लॉक्ड अप इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स मतलब बहुत बड़े बड़े पर्वत है आइस के, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं. अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन वेल्स. अंडरग्राउंड जो मतलब कुएं में खोद के निकालते हैं या बोरवेल्स में निकालते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड. Only about 0.036% of the Earth's total water supply is found in fresh lakes and rivers. Right? Fresh lakes and rivers में जो पानी है वही हम लोग पी सकते हैं. ये समंदर का पानी नहीं पी सकते. अंडरग्राउंड वेल्स हम जब डिग करेंगे तो ही उसका पानी निकाल के पी सकते हैं. राइट? सो वेरी लेस परसेंट, 0.036% is only available on the planet to drink. The small percentage in lakes and rivers is still many trillions of liters. Small percentage ये भी निकाला तो भी ट्रिलियंस है, मतलब काफ़ी सारे लीटर्स में पानी है वो. But it's a very small amount compared to all the water in the whole world. वो बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए हमको जो मिल रहा है उसको हमें बचा के रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. The rest of the water on the planet is 0.004% in either floating in the air, is either floating in the air as water vapor, clouds and water vapor, right? Water vapor को underline करो. Or is locked up in the plants and animals. Did you know that your body is 65% water? What means if you weigh 30 kilograms, 19.5 kilograms of you is water. अगर आपका बॉडी वेट 30 किलोग्राम्स है तो 19.5 किलोग्राम्स क्या है आपका बॉडी में? वाटर है. राइट? Activity 10. The text water water everywhere has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs or charts. A pie chart is a circle. Pie chart ऐसा होता है, सर्कल में से छोटा छोटा पोर्शन काट के बताते हैं. मतलब सपोज एक आप गोल रोटी ले लो या आपका पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ऐसे शेप का होता है. राइट? आपको इधर भी पिज़्ज़ा का ही पिक्चर दिया हुआ है, तो उसको आप कुछ सर्कल्स में, जैसे ये हाफ हो गया सेमी सर्कल, तो ये परसेंटेज ज़्यादा है, हाफ यानी 50% हुआ, तो इसमें आप परसेंटेज दिखा सकते हो. ये है 10% या 20% बोलो आप. राइट? ये 20% है, ये 10% हो सकता है. सो ऐसे आप परसेंटेज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो. सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ पाई चार्ट. यू नो दैट? ओके. Easier to understand in graphs or chart. A pie chart is a circle divided into parts like a pizza pie. How many parts does a pizza have? Which part shows one half of a pizza? This half is showing one half, right? This is called a curvature. Okay. ये देखो पाई चार्ट उन्होंने आपको शो किया है, ऐसा होता है पाई चार्ट, और उसमें अलग अलग पोर्शंस देते हैं परसेंटेज वाइज. मान लो ये पूरा हाफ हो गया तो दिस इज 50%. राइट? हाफ हो गया तो पाई चार्ट शो द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई. हाउ मेनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो हैव? एक ही, दो ही पार्ट है इसमें. ये एक है 5% जैसा है और ये पूरा फुल 95% है. राइट? पाई चार्ट बिलो. नोटिस 2 of the parts are very very small. ये छोटा सा एक ग्रीन पोर्शन है यहाँ पे, देखो ये 1% होना चाहिए. राइट? और ये बाकी का 4%, और दिस इज अ वेरी बिग पोर्शन, सो दिस शुड बी 95%. राइट? Read water water everywhere carefully and show your understanding by matching the places in the pie chart with the correct colors. Underground water, ये ओशन वाटर है पूरा. सबसे ज़्यादा कौन सा है? ओशन वाटर है. तो अंडरग्राउंड वाटर दिखा है, कलर से आपको मैच करना है. लेक एंड रिवर्स में इतना सा है, ये रेड वाला पोर्शन, एंड ओशंस में ये ग्रीन वाला पोर्शन छोटा सा जो आप पी सकते हो. देन पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स वो तो एकदम छोटा सा ब्लैक पोर्शन यहाँ पे जो लाइन दिया है, बहुत छोटा सा.
एंड पीपल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो भी एकदम छोटा सा पोर्शन इधर दिया है, राइट. सो ये बहुत कम है. ये मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ ओशंस एक्चुअली, नॉट अंडरग्राउंड वाटर, right. So this is the way you understand a pie chart. So we finish unit 3 over here. I will be sharing the question answers of this unit along with your English lessons next time. वर्कबुक का जो है वो लेसन्स में आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख के फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप कंप्लीट करने लग जाना. इसके अंदर जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है उतनी ही करनी है, बाकी क्रॉस आउट करनी है. अंडरलाइन वर्ड्स को आपको लिखना है नोटबुक में, क्योंकि वो आपके हार्ड वर्ड्स हैं. ये एक्सरसाइज जो मैंने इधर सॉल्व किया है वो इधर ही लिखो, कोई नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद यूनिट 4, राइट. वी स्टॉप हियर टुडे.